and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Jai Baba, everybody. Jai Baba. Okay, today I would like to start with a question. Okay, how many of us know this meaning of Jai Baba? Is it just a greeting that we have, like good morning, good afternoon, and stuff like that? Or is there something more to it than just this good morning, good afternoon business? So what can someone unmute and tell me what do you make of this Jai Baba? Haji? Haji? Victory. Ah, good. Yeah. Yes. I think it is started from Hamirpur. Right. Pukarji used to say Jairam, because in the Hamirpur there is a everyone, when we see each other we say Jairam ji ki. So from there it started Jai Baba. Instead of Jai Ram, they started saying Jai Baba. Yes. Now I remember distinctly this similar point had been discussed in the Mandli Hall with Eraj Jasawala. So Eraj pointed out three things. When we say Jai Baba to one another, the first is, of course, you are trying to greet each other. Yes. The second thing is you are bowing down or greeting the Baba that is residing in the other person's heart. The Baba residing in your heart is greeting the Baba residing in the other person's heart. That is number two. And number three, like Kundaji mentioned, victory. Jai means victory. Victory to Baba. Baba की victory कब होती है? जब we get vanquished. जब हमारा अहंकार मिट जाता है, that is when Baba की victory होती है. So that is the meaning of Jai Baba. So from now on, whenever we meet and greet, Archana ji, are you listening? So this is what Jai Baba is all about. I'm reminded of a small anecdote. एक दफे Baba had gone for a visit to school. Baba used to love children. There were two kinds of people whose company Baba loved very much, besides Zairachas, of course. One was school children, little children, and the second was mast. मस्त लोगों और बच्चों की कंपनी बाबा को बहुत पसंद थी. तो एक दफे स्कूल में ऐसे ही गए थे दर्शन देने के लिए, एंड द चिल्ड्रन हैड लाइंड अप एंड एवरीबॉडी वन बाय वन केम फॉर बाबा's दर्शन. और बाबा की आदत थी ना, सबके साथ बात करते थे, तो ही वुड आस्क एवरी चाइल्ड, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, क्या खेलते हो, आर यू गुड एट क्रिकेट, आर यू दिस, आर यू दैट, ऐसे सबका एक 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 एक. When somebody would say, I do cycling, Baba said, very good. I also used to cycle. I also used to play cricket. ऐसे वैसे सबको encourage करने के लिए. Suddenly, one boy, he came up and he said, Baba, I'm a swimmer. I swim. That is my favorite sport. मैं swim करता हूँ. तो बाबा ने बोला वेरी गुड, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ये वो सब ऐसे. तो होशंग, डॉक्टर होशंग भरूचा वाज अराउंड, तो उन्होंने आस्ते से बाबा को बोला, बट बाबा यू डोंट स्विम, आपने कभी स्विम नहीं किया है. तो बाबा ने द आंसर ही गेव वाज सो प्रोफाउंड, इतना ब्यूटीफुल
जवाब दिया उन्होंने. Baba said, I don't need to swim. I am the ocean. मैं खुद समुद्र, तो मेरे को स्विम करने की जरूरत नहीं है. Always remember this. Baba is the ocean. He is the ocean of love. Whenever, जब भी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी पूरा हफ्ते भर ये दुनियादारी की भागदौड़ करने के बाद, whenever you feel tired, you feel bored, you feel down and out, एक डुबकी, take a dip in his love, इनके जो प्रेम का समुंदर है उसमें एक डुबकी लगाओ, you come out refreshed for the rest of a long time. And that is what it is all about. Yesterday, yesterday there was a long discussion on Muhammad the Mast. What happened? लेकिन कभी कभी मैं वहां से पसार होता था तो आई वुड जस्ट से जय बाबा एंड निकल जाता था. तो मोहम्मद को हाँ जी. Sorry, Anaita here. Sorry, your video was stuck for a few seconds. Can you just go back 2-3 lines? Sorry. I am now discussing Muhammad the Mast. Thank you. Okay. Abhi, am I okay now? Yes, Hello? yes. Yes, Okay. yes. Okay, so Muhammad had this habit of abusing me. He loved abusing me. Sala madrasi chamar. That is what he used to call me. I don't know why, but that is what he called me. फिर एक दिन क्या हो गया कि as I was passing through, there was another friend of mine called Aspi Elavia. Sorry, he was sitting with Muhammad. तो उन्होंने मेरे को बोला कि सैम आजा, आज मोहम्मद इज इन अ वेरी गुड मूड, तुम्हें कुछ आशीर्वाद देगा. आई सेड कि अभी क्या आशीर्वाद. सो आई हेजिटेंटली वेंट. तो उसने मेरा मुंडी पकड़ के मोहम्मद के चरणों पे बिटवीन हिज नीज ही पुट माय हेड देयर, वहां पे वो मेरा मुंडी रखा. एंड मोहम्मद ने वो अपने एक हाथ से इतना जोर से मेरे टपले पे मारा एक कि कान में टिंग 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 घंटी बजने लगी. फिर वो अस्पी मेरे को पूछ रहा है, दादा तेला आणखी आशीर्वाद दिया. मैं बोला नहीं बाबा, बस बहुत हो गया, अभी घंटी बहुत बज गया. एंड आई गॉट अप एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर. सो दिस इज माय एक्सपीरियंस विद मोहम्मद द मस्त. Now, many of you must have heard of this actor called Rajnikant in South India. He's as famous as Amitabh Bachchan in Indian Bollywood. So today I have Rajnikant online to talk with us, except that he is not that South Indian Rajnikant, but our own Rajnikant from Surat. His name is Rajnikant Mistry. Rajnikant Mistry is from a family of Baba lovers. There were about 5-6 brothers. One of the eldest brother was Kishore Mistry. Sorry. Kishore Mistry, who was the secretary of our center also. Rajnikant lives in Surat and he's had, उन्होंने बाबा के बारे में बहुत डीप स्टडी किया है. He has also translated God Speaks to Gujarati. And without making any much more fuss about it, I would like Rajnikant to please come in and take over and start talking about his life with Baba and his experiences.
थैंक यू। रजनीकांत आओ। हेलो, आया? रजनीकांत किधर है? He's coming. He's coming. Wait. अच्छा, Here he is. Wait. Okay. So until this time, the actor Rajni, your mic, Rajnikant bhai. Yeah, he's come. He's come. He's come. sorry, what were you saying, Ram? Hello? Rajnikant is not South Indian. He's a Maharashtrian. No, really? I didn't know His this. name is Shivaji Rao Gaikwad. Oh my God, I didn't know this. Thanks. Thank you, Ram. He's there. Yes. चलो, श्याम, रजनीकांत चालो नहीं, स्टार्ट करो। मैं अभी जो है मेरी बात बता रहा हूँ। जी। जो बाबा का नाम मैंने सुना था वो एंड ऑफ द 1954 और शुरुआत में से 1955 से जो एक सूरत का जो रविकांत रावल था और बाद में किशोर मिस्त्री जो मेरा ब्रदर है उसने एडमिशन लिया था बॉम्बे कॉलेज में, तो मातुंगा में जो भी है, तो उसके मुताबिक हम बाबा के संपर्क में आए, बाबा की बातें कोई बातें सुनने लगे और इस तरह से ये जो 1955 से, हेलो, आप बोलते रहिए। बोलिए। तो ये जो बात चल रही थी 1955 से, तो मैं ये बाबा के नाम सुना था। वो टाइम से बाबा का जो सर्किट आता था वो टाइम भी हम बाबा के इनडायरेक्टली संपर्क में रहते पहले। उसके बाद में बाबा का जो दर्शन प्रोग्राम था, जो बाबा 1956 में 29 जनवरी में बाबा ने नवसारी में दर्शन किया था। वो टाइम मैं मेरी स्कूल में, तो मैं करीबन 8वीं कक्षा में था और मैं जाना चाहता था बाबा के दर्शन के लिए, फिर भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि कोई लोग मुझे ले नहीं जाना पाते थे। तो ये मेरी जो लिंक थी वो इनडायरेक्टली मेरे कंटिन्यूस चल रही थी, क्योंकि बाबा का जो सर्कुलर आता था उसमें भी मैं जो बाबा का जो इंस्ट्रक्शन आती है, सूचना देते थे बाबा, उसको मैं करीबन फॉलो करता था पूरी तरह से। इस तरह से ये 1956 का जो दर्शन प्रोग्राम था उसमें भी मैं बाबा का दर्शन कर नहीं पाया। अभी इससे बाद में 1958 सवास आया, तो वो टाइम भी मेरा करीबन 16 इयर्स था और ये उसमें एज लिमिट थी, तो मैं उसमें भी मिल नहीं पाया। इस तरह से बाबा का जो मेरे के दर्शन करने का जो मौका मैं बार बार गवा देता था, मुझे ये बहुत अभी भी चुकता है। तो ये जो बाबा की मर्जी है, जो भी होगा वो ठीक है, ऐसा जो चलता रहा। बाद में मेरे 1959 में बाबा का जो दर्शन हुआ, तो मैं बम्बई में एशियान में, वो मेरा पहला दर्शन हुआ। किशोर भाई ने हमारी सूरत फैमिली को साथ में लिया था और वहाँ पे आशियान में वो मौका मिला था। तो जब भी मेरा जो टर्न आया, वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि 1955 से जो बाबा की एक देन है मुझे, तो उसमें जो एक कन्विक्शन दिया था, एक कृपा की थी मेरे को, तो मैं उस समय से बाबा को पक्का एकदम ईश्वर ही बाबा है ऐसा मैं बाबा को समझता था उसको, यानी कि ऐसा दृढ़ उसमें विश्वास रहता है। तो ये बाबा की, तो मैं कोई भी जगह किसी की को भी और ये नहीं करता सिवाय बाबा। तो इस टाइम जब भी मैं आशियाने में दर्शन के टाइम पे जब मैं बाबा के पास गया, तो एक सहज भाव से, एक हृदय की गहराई से, हे ईश्वर, ऐसा इस सहज भाव से मुझे बोला गया जो ऐसा। तो ये वही क्षण
बाबा ने मुझे जो आलिंगन दिया, इतना जोर से मुझे दबा कचरा दिया कि जैसा प्राण निकल जाए, इसी तरह से बाबा ने एकदम जबरदस्त आलिंगन करके दबा दिया मुझे। तो ये एक मेरा पहला बाबा का दर्शन का मौका था। और बाद में तो एक वही दिन दोपहर को कव्वाली का प्रोग्राम भी था, लेकिन हमारा परिवार सूरत वापस जाने का वाला था, इसलिए मुझे वो परवानगी नहीं मिली, मैं सूरत चला गया। तो वो भी मुझे मौका, बाद में मैं बता रहा हूँ कि बाद में मैंने बहुत टाइम गुरु प्रसाद में, इवन वो जो पुणे सेंटर का जो उद्घाटन हुआ वो टाइम, और एक टाइम मेराजाद में भी मुझे ये मौका मिला था। डॉक्टर गुरुचांद ने वो टाइम पे मुझे नवसारी के ग्रुप में शामिल किया था सूरत में, क्योंकि बाबा ने इंटीमेट पर्सन को बुलाया गया था, तो उसमें मुझे किया। तो मेराजाद का भी मुझे ये मौका मिला था बाबा के पास दर्शन के जाने में। तो इस तरह से बाद में मैं बहुत टाइम दर्शन करने को चांस मिला था। इस दौरान जो बाबा ने जो कन्विक्शन दिया था उसके बारे में मैं एक बात बताता हूँ। बातें तो अलग अलग है, लेकिन तो जो भी है, तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक इंसिडेंट पहले बताता हूँ आपको कि मैं 1962 में जो मैंने पहली सर्विस ज्वाइन की पीएनटी डिपार्टमेंट में, और उसका जो डिपार्टमेंट जो सेक्शन था टेलीग्राफिस्ट करके, तो उसमें मैंने टेलीग्राफिस्ट में वो मेरी पहले तो ट्रेनिंग थी टेलीग्राफी की 6 महीने की, बाद में 2 महीने के जो और भी ट्रेनिंग थी उसकी प्रैक्टिकल और टेक्निकल की। तो वो सब मिला के वो जो खत्म हो रही थी अभी, वो टाइम ऐसा था कि जो टेलीग्राफ सेक्शन था वह बहुत डिसिप्लिन, बहुत कड़क रहते, क्योंकि ज्यादातर एंग्लो इंडियन वो टाइम था। तो मैं जब ये जो ट्रेनिंग ले रहा था अहमदाबाद में सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में, और ये वहाँ का जो सेक्शन था और वहाँ का जो चीफ सुपरिटेंडेंट था मिस्टर स्मिथ करके, वो भी एंग्लो इंडियन, बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। तो क्या है कि जो अभी हमारी ये जो ट्रेनिंग खत्म हुई और अभी ये जो रिजल्ट आने वाला था उसके मुताबिक जो मेरिट लिस्ट होती है और सीनियरिटी, और बाद में इमीडिएट हमको उसमें ड्यूटी पर लग जाना था सर्विस पे, तो ये शुरुआत होने वाली थी। तो ये ड्यूरेशन में किसी को भी कोई टाइप की लीव नहीं मिल सकती थी कभी भी, ये ऐसा वहाँ का रूल था। अभी वही टाइम पे ईस्ट वेस्ट गैदरिंग का टाइम आ गया, और 1 से 4 जो हमको पता है, तो ये समय से जो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग का जो समय था और ये टाइम जो था कि लीव नहीं मिल सकती, तो ये मेरे लिए फिर से एक बड़ा झटका था कि मैंने 1958 का सवाल भी गंवाया, ये भी गंवा दूंगा ऐसा। लेकिन मैंने बाबा के पास कुछ, मैं ऐसा ही बैठा सोच रहा कि अभी क्या किया जाए, जो बाबा की मर्जी है वैसा करेगा, जो होगा तो होगा ही रहेगा। लेकिन मैंने इंस्ट्रक्टर, जो मेरे इंस्ट्रक्टर है उसको बताया था कि मुझे ऐसा जाना है, तो वो बोला कि कभी भी कोई भी संजोग में आपको लीव नहीं मिल सकती। अभी मैं ऐसा ही सोचा रहा, मैं तो कुछ नहीं कर पाता था अभी। तो अचानक क्या हुआ, वो इंस्ट्रक्टर जो है इतने सारे सीनियर ऑफिसर था वो, तो उसने उसकी जवाबदारी पर मुझे छोड़ दिया, कोई भी राइटिंग में कुछ भी ऐसा ही छोड़ दिया है। अभी मानो कि कुछ भी होगा तो क्या उसकी सर्विस तो जाएगी, मेरी तो जाने वाले ही थे, उसकी भी जाती है। तो इस तरीके से उसने कैसा क्या होगा उसमें उसने मन में क्या हुआ होगा, तो उसने मुझे ऐसा ही छोड़ दिया। और मैं ये जो 62 का सहवास ये पूरा का पूरा मैंने अटेंड किया, और बाद में मैं वापस आया वो जो अहमदाबाद। तो वो टाइम पे जब मैं गया था, वो टाइम पे रिजल्ट की समरी हो रही थी, यानी कि वो मेरिट लिस्ट पे वो डिस्कशन हो रहा है, तो और ये जो सबका जो अलग अलग बोला रहे थे जो जो कैंडिडेट जो था उसको, तो ऐसा ऐसा करके वो टाइम ऐसा भी वक्त आया
हु इज मिस्टर इंजीनियर, वो जो मिस्टर स्मिथ वो खुद वो आया था वहां पे, और जो चीफ सुप्रिंटेंडेंट, और ये बात हो रही थी और सबका रिजल्ट देखते गए, अलग अलग उसको बुला रहे थे। तो इस टाइम पे उसने बोला कि हु इज मिस्टर इंजीनियर, और वो टाइम मेरी सरनेम इंजीनियर चलती थी। अभी ये देखो कि ये कितना एकदम इसकी जो अभी की जो ये है पल, एक क्षण है, ये बहुत खतरनाक थी। उसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्या बाबा की उसमें लीला होगी कि इसका कोई फोन आया कि कुछ भी ऐसा इमीडिएट कोई अर्जेंट काम आ गया, तो वो सीटीओ में चला गया, और ये बाद में ये बात ही पलट गई और ये बात बिल्कुल शांत हो गई। और मीनवाइल में वो वहां से मैं पुणे से अहमदाबाद आ गया। तो मुझे वो टाइम बाद में पता चला कि ये बात हो गई थी। तो ये बाबा ने कैसा संभाला ये मुझे पता नहीं। वैसा ही एक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यही जो बाबा ने जो बॉडी ड्रॉप की वो 69 में, जो तो वो टाइम में राजकोट में ट्रेनिंग में था, हिंदी टेलीग्राफी, यानी कि हिंदी में टेलीग्राफी थी। उसमें भी कोई टाइप की लीव नहीं मिल सकती, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड का वो उसमें फिक्स किया गया था कि इतने पीरियड में ट्रेनिंग लेनी थी। अभी यही टाइम पे जो बाबा ने बॉडी ड्रॉप किया 31 जनवरी को, और ये नवसारी को संदेश, मैं तो वहां था, वो राजकोट में ढेबर सैनिटरी में एक रूम लिया था, और ये रूम में डॉक्टर को मालूम था कि ये मेरा एड्रेस क्या है, और ये रूम में मैं, मेरी वाइफ और ये मेरी माता जी, ये तीनों हम एक रूम में रहते थे वो टाइम पे, और मैं वहां पे ट्रेनिंग में था। तो वो दरमियान जो मैसेज आया नवसारी को, तो वो लोग डॉक्टर भरोचा जा रहे थे मेरा बाद, वो टाइम वो उसने टेलीग्राम करके मुझे भेज दिया कि ऐसा ऐसा है, हम जा रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि ये टेलीग्राम जो आया, और ये दरमियान उसके पहले मैंने वो रूम चेंज कर दिया था, तो जो टेलीग्राम गया तो वो पहले रूम में गया, और वो जो रहता था उसने उसको कोई इग्नोर किया, वो ऐसा ही पड़ा रहा, मुझे मैसेज नहीं मिला। और वहाँ वो राजकोट में वो टाइम में रेडियो भी नहीं सुनता था, और न्यूज़पेपर, क्योंकि हम ट्रेनिंग में थे, उसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम उसमें नहीं जा पाते थे। तो मुझे ये समाचार नहीं मिला। अभी देखो कि ये जो बाबा की ये महान घटना है, ये जो अंतिम जो अवसर है, वो भी मैं गवा देता तो मुझे आज भी बहुत चुभता रहता, जबरदस्त। तो ये जो बात हो रही थी, मैं बता रहा हूँ कि ये 2 दिन पहले मेरा ब्रदर ने फोन किया वहां से, नगर से, कि ऐसा ऐसा है, 2 दिन के बाद बाबा का अंतिम दर्शन होगा और बाद में वो मिट्टी डाल के उसको बंद किया जाएगा। तो वो टाइम मुझे पता चला कि भाई ये तो बाबा का ऐसा है। तो ये जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो क्लास में, वो अच्छा मेरे साथ एक मॉनिटर जैसा मुझे साथ व्यवहार करता था। तो उसने ये समाचार सुन के मुझने स्पेशली लीव दी। बाकी लीव वो टाइम पे नहीं मिलती, कोई भी सीएल कोई भी लीव नहीं, क्योंकि ये ट्रेनिंग का फिक्स टाइम होता है और उसमें ये लीव नहीं हो पाती। तो इस तरह उसने कैसा मुझे वो लीव किया, उसने लीव की, और मेरी माता जी और वाइफ के साथ हम, वो टाइम पे बहुत दिक्कत थी वो ट्रेन को, और ये टाइम पे कहाँ जगह मिलती। और रात को मैं निकला, और वो राजकोट से विरमगाम मीटर गेट, वहां से फिर से ट्रेन बदलो, और विरमगाम से बॉम्बे से आया, वहां से कैसी वो एकदम हालत में मैं राइट टाइम पे पहुंच गया। और देखो वो जाने के टाइम सूरत स्टेशन से पास होता था, तो मैंने वहां से फोन कर दिया था कि मैं वहां पहुंचता हूँ, अगर जो आपको कुछ भी मैसेज आएगा तो आप रेडी रहना, इमीडिएट आपको वो मेरा बाद निकलना है। इस तरह से मैं मैसेज छोड़ के मैं मेराबाद पहुंचा, और
बाबा का दर्शन किया। और बाद में मैंने वो वहाँ की वो टीबी हॉस्पिटल से, ऐसा मुझे मालूम है, वो टाइम कोई फोन नहीं था वहाँ पे। और आपको पता होगा कि वो टाइम पे एक फोन कॉल जो करता है तो कितने कितने घंटे तक फोन मिलता है, ट्रंक कॉल बोलता थे वो टाइम पे। आज तो ऐसा तो नहीं होता है, तो कितने दूसरे दिन भी हो सकता था कॉल नहीं मिल पाता था। तो वो जमाने की बात में तो वो टाइम ट्रंक सिस्टम थी। और मैंने वो इमीडिएटली कॉल बुक करवाया सूरत के लिए। और बाद में मैं तो ये सेक्शन हमारा ये था टेलीकॉम डिपार्टमेंट, तो मैंने खाली कैरियर सिस्टम के जहाँ से वो ट्रंक लाइन पास होती है, जो कंट्रोल होती है, वहां से मैंने कैरियर में ऐसा ही फोन किया कि भाई देखो मैं ऐसा हूँ डिपार्टमेंट का, मुझे ऐसा फोन मैंने बुक करवाया। तो मानो नहीं दूसरी मिनट में उसने सूरत कॉल ज्वाइन करवा दिया। और वहां से मैंने बोला कि देखो ये कल ऐसा है, बाबा का अंतिम दर्शन है और बाद में बाबा को बद दिया जाएगा समाधि में। तो इस तरह से मैंने मैसेज दिया। तो वो सूरत का लोग, हमारा जो परिवार थे, वो एक ट्रेन तो जो फास्ट बोलते हैं वो टाइम सौराष्ट्र एक्सप्रेस तो चली गई। बाद में एक जो बम्बई दिल्ली जनता आने वाली थी वो कैच की उसने, और उसमें सब लोग निकल पड़े। लेकिन वो दिन ऐसा हुआ कि ये जो पहले वाली ट्रेन थी वो उसको बाईपास करके ये ट्रेन पीछे वाली चली गई, क्योंकि ये जो ट्रेन जो नहीं जाएगी तो उसका जो टाइमिंग था वो शायद नहीं पहुंच पाते इन टाइम पे। तो जो भी है वो लोग ने ऐसी घटना, वो टाइम ऐसे कोई बनती नहीं है, लेकिन वो ट्रेन आगे निकल गई और वो लोग वो भी टाइम पे आ गए, उसने दर्शन किया और सब कुछ मिट्टी डालने का भी ये हुआ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी घटना बनती है हमको ऐसा लगता है कि बाबा ने ऐसा कर दिया ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें बहुत डिटेल्स होती है। अगर जो डॉक्टर भरूचा को जो टेलीग्राम मिला मुझे वही टाइम मिला होता और मैं शायद निकल भी होगा, निकला होगा, तो क्या होता कि मैं खाली दर्शन करके चला था। इतने दिन तो मैं ठहर नहीं पाता, इतनी छुट्टी भी नहीं मिला दे सकते तो लोग। तो ये जो अभी जो प्लानिंग होगा बाबा ने जो किया, तो मैं दर्शन भी किया और जो मट्टी डालने का अंतिम जो भी है वो भी कर पाया। वैसा मैं और भी इंसिडेंट, लेकिन श्याम पटेल जो मुझे अलाउ करेगा तो बोलूंगा, नहीं तो जाने देगा। श्याम हेलो। तो हेलो, सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। मेरा वीडियो ऑन ही है, बाकी के लोग भी सब अपने वीडियोस ऑन कीजिए। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्लैंक वॉल, इधर सामने कुछ नहीं आता है। हेलो, हाँ जी बोलिए, अभी बोलिए रजनीकांत। मैं आगे बढ़ाऊं क्या? हाँ जी हाँ जी। तो दूसरी बात ऐसा हुआ कि इस साल मुझे पता नहीं है, तो ये जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ कि ये जो पंचगनी है वहां पे एक कार्यक्रम था, जो वहां पे स्कूल है जहाँ बाबा के कनेक्टेड जो है वो टाइम की जो, तो ये स्कूल में कार्यक्रम रखा गया था। उसमें पुणे और मुंबई लोग के सब बाबा प्रेमी ने वहाँ गया थे। तो वो मैं बम्बई से जो बस लग्जरी बस की थी उसमें मैं, शांति मिश्री और मैं और सब लोग, उसमें मेरा लड़का भी था दिव्य, उसके साथ हम पंचगनी गए थे वो बस में। और वहाँ का प्रोग्राम एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रोग्राम हम सैटरडे को गए थे, संडे को रिटर्न होने वाले थे हम। और मैं रात को वो ट्रेन कैच करके मंडे को 10 बजे अहमदाबाद पहुंचना था। और ये टाइम ऐसा था कि हमारी एक कैडर चेंज होती थी और सीनियर टीओ ऐसा करके एक कंप्लीट कैडर चेंज और उसके पे स्केल और सब अलग होता था। यानी कि हमारी ये एक सिस्टम में जो था, तो करीबन 10-12 लोग हमारा जो टेलीग्राफ है उसको ये चेंज होना था। और ये जो पीरियड था कि अहमदाबाद हमको पहुंचना था 10 बजे मंडे को, और मेरा तो पास टाइम पूरा
बिल्कुल ये था। तो मैंने सोचा कि ये मैं कार्यक्रम अटेंड करके मैं पहुंच जाऊंगा अहमदाबाद डायरेक्ट। तो क्या हुआ था कि प्रोग्राम तो पूरा हो गया पंचगनी का, मैं बम्बई से जुड़ा हुआ था लग्जरी बस और ये क्या हुआ कि बस चालू हुई, थोड़े टाइम के बाद पंक्चर हुआ, कितने टाइम गवा दिया उसने, फिर से थोड़ा टाइम गया, फिर से पंक्चर हो गया। ऐसा 2-3 बार होने के बाद जो मेरी जो अभी मेरा होता कि अभी क्या होगा मैं अभी, क्योंकि ये भी बहुत जो सीरियस बात मेरे लिए, डिपार्टमेंट की बात है, डिसिप्लिन के बारे में बहुत अलग होती है, तो वो मेरी सोच से एक बहुत गंभीर बात थी। अभी क्योंकि ये जो बार बार जो बस डिले हो गई और बम्बई आया, तो रात को बस आई और सभी ट्रेन चली गई अहमदाबाद के लिए, कोई बसेस भी नहीं मिलती मुझे, कोई 12 बज गया तो कौन कैसा कोई जाएगा नहीं इतने लेट से। अभी मेरा कोई चारा नहीं था। सवेरे मंडे को मुझे गुजरात एक्सप्रेस जो फर्स्ट ट्रेन जो जाती है अहमदाबाद, वो मुझे कैच करना पड़ा। अभी मेरे साथ मेरा लड़का भी था और मैंने बोला था कि देखो सूरत जाता है, देखो मैं जाऊंगा अहमदाबाद, अगर वो लोगों ने मुझे वापस भेज दिया तो मैं चला आऊंगा, क्या करें दूसरा, मुझे कभी चारा नहीं है और मैं बाबा के पास तो कुछ मांग नहीं सकता, कुछ भी नहीं, ऐसी आशा भी नहीं रखता, छोड़ दे जो भी करना है वो। लेकिन ये बात बहुत गंभीर थी क्योंकि एक कैडर चेंज थी और बहुत सीनियरिटी का सवाल था डिपार्टमेंट का, और ये इस तरह से मैं तो वो गुजरात एक्सप्रेस पकड़ लिया, जो भी है बाबा का छोड़ दिया, होगा तो चला आएंगे, जो हुआ तो हुआ। ऐसा करके सूरत आया तो लड़का तो उतर गया डिबेट, मैं गया और ये जो अहमदाबाद में न्यू सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ वो ट्रेनिंग क्लास था हमारा और वहाँ हमको वो अटेंड करना था और प्रेजेंट होनी थी हमारी 10 बजे सवेरे, और मैं पहुंचा करीबन 3:45 बजे। मणिनगर स्टेशन जल्दी नजदीक रहता है, मैं उतर गया, रिक्शा पकड़ के वहां गया 5 बजे तो ये बंद हो जाता है और मैं करीबन 4:45 के आसपास पहुंच गया वहां पे, और मैं कुछ बताना चाहता कि देखो ऐसा हो गया है, मेरे चुप कुछ भी बोलने का नहीं, ऐसा उसने बता दिया और मुझे पता नहीं कि अभी तो मैं खत्म, मेरी बात हो गई, अभी जो होगा बाबा को छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ कि बाद में उसने कोई आदमी को भेजा और बोला कि ये क्लास में उसको ले जाओ, और मुझे वहां पे ले गया, मुझे फॉर्म भरवाया, जो भी कोया और सब किया, और पता नहीं हुआ कि कैसा बाबा ने क्या चाबी घुमाया, क्योंकि ये जो दिन जो मैं अटेंड नहीं कर, क्योंकि मुझे पता चला बाद में कि मेरा जो साथ में जो ऑफिस वाला था उसने बोला कि वो आने वाला है, तो उसने चुप करवा दिया कि अगर आप कुछ भी बोलेगा तो आपको सीधा वापस सूरत भेज देंगे, आपको ट्रीटमेंट उसमें से निकाल देंगे। तो इस ऐसी वो वहाँ की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थी। तो एनीवे, तो ऐसा माहौल में मुझे ये तो किया, लेकिन क्या हो गया कि बाद में मुझे एक मेरे से सीनियर भी थे और दूसरे कैडर के भी थे, क्योंकि कैडर 2 कैडर के एक कैडर कर रहे हैं तो सीनियरिटी और अलग होगा, और ये जो मेरिट है उसके मुताबिक सीनियरिटी फिक्स होने वाली थी, और कंपटीशन भी बहुत थी और हमारे से सीनियर भी लोग थे और जो होशियार थे सब लोग, और ये ट्रेनिंग चल रही थी। और क्या है मुझे पता नहीं है, मुझे मॉनिटर उसमें बना दिया और मुझे ये ऐसा करके जो ट्रेनिंग खत्म हुई और ये जो रिजल्ट है मुझे फर्स्ट उसमें ले लिया उसने, कैसा मुझे पता नहीं, और ऐसा उसने मेरा स्पेशल बहुमान किया और सब। तो ये भी कि जो दिन मैंने अटेंड नहीं किया, यानी कि 5-10 मिनट के लिए मैं पहुंचा था, तो 10 बजे में रिपोर्टिंग टाइम नहीं कर पाया था, तो 22 दिन हो सकता था हमारा रूल्स के मुताबिक, यानी कि सर्विस ब्रेक हो जाती एक दिन, तो वो भी चलता रहा। और ऐसा बाबा ने क्या संभाला और ऐसा इतना पलट के इतनी ऊंचाई पर ले गया बाबा, तो मुझे पता नहीं कि किस तरह से होता है, ये मुझे पता नहीं। दूसरी बात, अभी मैं जो ये तो घटना चलती रही है, लेकिन हमारे जो जीवन में आचरण है उसके बारे में भी मुझे बताना ठीक है कि
अगर जो ये नहीं चाहे तो हम कहीं खाली बाबा बाबा करते हैं। लेकिन जो ये जो अभी भी हमारा साइरस साहब से बात हुई थी यही प्लेटफॉर्म पे कि जो राइट इश्यूज के बारे में भी, तो मैं वो भी थोड़ा बताना, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि मैं वो टाइम से कभी भी मैं ये जो सेरेमनी है या जो सत्यनारायण कथा बोलते हैं सब में मैं कभी भी मैं ऐसा अनादर नहीं करता था। लेकिन जो हमारा बाबा जो हाईएस्ट तो भी हाई है, तो दूसरा इसके अलावा क्या हो सकता है, ये हम एक दृढ़ विश्वास बाबा ने जो दिया है तो उसके मुताबिक चलता था। तो क्या हुआ है कि हमारे जो पहले जो घर में जो होता था तो फैमिली लोग थे, हम उसको तो कोई रोक नहीं पाते थे। लेकिन जब मैं अलग हुआ, सब भाई अलग अलग घर पे रहने लगे, तभी तो मैं कर सकता था कि बाबा का इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करना है। तो ऐसा हुआ कि देखो कि मेरी जो लड़की थी उसका पहला तो वो टाइम परिवार था, तो उसमें तो जो विधि हुआ तो मैं नहीं बोल पाया, रोक नहीं पाया था हम, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन मेरा जो सन था पहला था, उसका जो मैरिज आया, उसकी जो सब कुछ बात आई, तो वो टाइम हमारे जो मैरिज होता है कैसा होता है, तो कुल देवी बोलता है उसमें, जो हम बोलता है देखो तो परंपरा चलती है कि अगर उसको जो स्थापना नहीं करे, उसकी जो कुछ ये नहीं पूजा करे, तो अनहोनी हो सकती है, बहुत बड़ा कष्ट विघ्न आ सकता है, कुछ भी होता है। तो जब मैंने मेरे टाइम पे मेरे अंडर था तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैंने बिल्कुल हमको। तो हमारा जो क्लोज रिलेटिव है, हमारी मौसी है, सब लोग अरे क्या कर रहा है रजनीकांत, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या होगा, जो है हो रहे होगा, उसमें क्या, मैं कभी भी उसमें डरता नहीं, ये बाबा ने दिया, मैं ऐसा नहीं बोलता। तो ऐसा करके ये तरह से सब जो हुआ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बारे में फिर से भी ऐसे प्रसंग आया, तो मैंने कभी भी इसके वाले नहीं किया, जो बाबा का है उसके मुताबिक नहीं किया। अभी मैं आप जो बता रहे हैं कि किसी को विधि में जाना है, किसी को नहीं, मेरा ख्याल से मैं इतना ही करता हूँ कि जो बाबा प्रेमी नहीं है उसका जो भी है ऐसा, जो तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं जाने की। लेकिन ऐसा भी है कि हमारे जो क्लोज बाबा प्रेमी है, हमने देखा है और है ही कि जो नया घर लिया, कुछ नया कोई उस जो निवास का ये किया, तो उसमें उसने होम हवन सब कुछ करवाया। तो मैं बोलता हूँ कि ये विधि में मैं कभी भी नहीं जाता, मैंने ना को मैं नहीं आने वाला, वो क्लोज रिलेटिव था, हम नहीं बोलते थे उसके। लेकिन उसमें क्या है कि एक आपको दृढ़ विश्वास का सवाल आता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हो भवन नहीं गए तो कोई ऐसे आपत्ति आएगी, कोई ऐसा होगा कि ये ऐसा, तो ये आपको डर है। अगर जो बाबा का विश्वास है तो फिर ये जरूरत क्या है आपको, आप बाबा का भजन प्रोग्राम ऐसा कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी जो आचरण में जो लाना था, तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव हुआ। और जो हमारे जो फैमिली मेंबर्स ने जो राइट रिचुअल में जो देवी देविया को जो स्थापना करते थे और उसको पूजा करते हो जो प्रसंग में, वो सब धीरे धीरे सब निकल गया, उसका डर भी निकल गया, अभी नॉर्मल हो गया। तो ये मेरा कहना है कि अगर जो हम बाबा को आचरण में नहीं लाएंगे तो दूसरे को हम कैसा बताएगा कि हमारा ऐसा बाबा का जो है, तो इस तरह से ऐसा उसको डर निकल गया कि ऐसा बाबा का जो है। तो इस तरीके से मेरा जो ये प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा हो गई अभी थोड़े इस टाइम पे कि भाई जाना है नहीं जाना है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो अननोन पर्सन जो बाबा के फोल्ड में नहीं है और जो ये है वो लोग, तो हमको जाने में क्या। लेकिन ये जो बाबा प्रेमी है और ये जो करते हैं, तो उसमें एक दंभ का, हिपोक्रेसी का भी प्रभाव रहता है। अगर आप जानते हैं कि ये आप बाबा प्रेमी है ऐसा बताते हैं और दूसरे टाइम पे आप डर रखते हैं कि ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा, तो ये दोनों को ये नहीं होता है। तो इस तरह से मेरी बात जो जाती है, तो आगे ऐसा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। लेकिन हमारा जो ये टाइम है
तो उसके मुताबिक मैं अभी ये बात खत्म करता हूँ, क्योंकि ये जो चलते रहेगी तो मैं एक दूसरी भी बात है जो मैं अभी इसका टाइम लगेगा शाम। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम करेंगे, कि ये एक बड़ा एक ताजुब की बात है। तो एनीवे जो भी है, तो ये मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि हम जो बाबा प्रेम कर, लेकिन आचरण में नहीं होगा तो ये एक संदेश गलत जाता है लोगों को। तो हाँ, जो दूसरे लोग हैं ठीक है, लेकिन बाबा प्रेमी में हमको ये तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा ये जो ये प्लेटफॉर्म पर बात चर्चा हो रही थी राइट रिचुअल्स के बारे में, तो मैं उसमें नहीं जाता। ठीक है, जय बाबा। जय मेहर बाबा। रजनीकांत, थैंक यू सर। इनकी बातों से दो तीन चीजें सीखने को मिली। पहला, सबको एक रिक्वेस्ट है, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। इट सीम्स लाइक आई एम टॉकिंग टू अ ब्लैंक वॉल यार। कोई देयर इज नो इंटरेक्शन। तुम्हारा पिक्चर तो आने दो सामने। राकेश, what is this? Yes, I can see everybody. I'm able to see. I can't see anybody here. I'm on. No, Sam, actually your internet connectivity is a little slow, huh? It was showing on my screen. Your internet connectivity is slow. Oh. But am I audible? Yes. It's showing on the screen. Bandwidth is low. Maybe that is when the video has gone off. Oh, okay. Sorry about that. On screen also. Aji? Sorry? Showing on our screen also. Sam Patel's network bandwidth is low. Okay. Now, anybody else wants to say anything? Mayor Daruwala? Yeah, I think Mayor wanted to share. Yeah, you wanted to share something. Can you do it very briefly, please? Today, when the electricity had gone in the afternoon because of the rains, suddenly the frigidaire, we have a light on a Godrej frigidaire, and it came back. I was quite shocked that Baba brought it back. Okay. Thank you. Anything else? No. Okay. Anybody else wants to say anything? Jai Baba. Jai Baba. Just now, Mr. Rajnikant Mishri said not to do housewarming and all that. With regard to that, I remember one incident. कौन बोल रहा है? Who is speaking? Meher Krupa. हाँ जी, बोलिए, please. So I remember when Dada, my father, we are Bade, Pathardi. So when he built up a new house, and he named it Meher Marji, and Baba's photo and big hall for Baba's purpose and meetings and bhajan. And he insisted and requested Mandali, Baba Mandali, to come for the inauguration. So at that time, Mehra Mai and those people told him, Manimai and all those told, no, you first do it as per your custom. जो वास्तु शांति बोलते हैं, और दादा के पास तो घर में वो गणेश जी की मूर्ति तक नहीं थी, क्योंकि वो बाबा के अलावा और कुछ करते ही नहीं थे, और घर में ना ही वो देवघर या कोई डायटीज का आइडल्स कुछ भी नहीं था, तो शायद वो सब कुछ भज्जी लेके आया। पर चूंकि बाबा मंडली ने दादा को बोला कि आप ये आपका ये इसके हिसाब से कस्टम से करो, तो दादा ने वो करवाया था, मुझे इतना मालूम है। और वो गणेश जी का मूर्ति नहीं था, तो वो पंडित जी ने कुछ सुपारी वगैरह वहां रखी थी, क्योंकि घर में कोई डायटीज का यही नहीं था। पर उसके बावजूद भी फिर दादा ने उनको इंसिस्ट किया कि आपने बोला तो मैंने पूजा करवाया, लेकिन लॉक लगा के रखा है, जब तक आप लोग नहीं आओगे मैं वहां वो घर में रहने नहीं जाऊंगा। और फिर पूरी बाबा मंडली, मतलब वो 1970s की बात है, बाबा नहीं थे, तो मेहरा माई से लेके, और उस समय सारे मंडली थे, आदि काका, पेंडू काका, सब लोग थे, वुमेन एंड मेन मंडली पूरे सब आए थे वो घर के इसके लिए। जय बाबा। जय मेहर बाबा। ओके, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है तो बताना चाहता हूँ। इट इज अबाउट अकबर बादशाह। हम लोग जब छोटे थे तो सब
अकबर बिरबल की बहुत सारी कहानियां सुनते थे. तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज. अकबर बादशाह was very fond of going out for a शिकार. तो एक दिन शिकार पे निकले अपने ग्रुप के साथ. But somehow or the other he wandered away and he lost his way and he was alone. और शाम हो गई. There was no place to take shelter. Somehow or the other he came across a very small झोपड़ी right in the middle of the forest jungle. तो उन्होंने वहाँ जाके he asked for shelter. तो बेचारा एक फार्मर, गरीब नहीं, a woodcutter, he was a woodcutter, गरीब आदमी था. तो उसने बोला कि सर आप you're more than welcome but I don't have anything much. तो बादशाह ने बोला भाई I don't have a choice, let me just spend the night over here. तो that fellow's wife and all बिचारी ने बहुत मेहनत करके अच्छा सा खाना बनाया. They treated him very nicely. ये वो Akbar Badshah was very happy. Next morning, before leaving, Akbar Badshah takes out his ring and gives it to that fellow and tells him, "Okay, I'm very happy with whatever you've done for me, and this is my gift to you. If you ever need any help from me as an emperor, तो आप सीधा चले आना मेरे दरबार में, और अगर कोई भी आपको रोके तो show them this ring and they will know कि भाई you are my special guest and they will let you through." तो बेचारे वो वुडकटर ने वो रिंग अपनी वाइफ को दे दी. उसने संभाल के ऊपर कहीं तरी रख दिया and the thing was forgotten. अभी it so happened कि in a year's time there was a terrible drought and the forest was destroyed and उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था. They came upon very bad times. So उनकी वाइफ को वो याद आ गया कि भाई ये अकबर बादशाह ने बोला था कि if you ever need help तो come and see me वगैरह वगैरह. So she told the husband. हस्बैंड ने बोला ठीक है, तो पहले मेरे को वो रिंग निकाल के दो तो I can go with that ring. So she gives him the ring and this man sets out. वो बेचारे 2-3 दिनों के जर्नी के बाद somehow or the other he lands up in the city, in the Akbar Badshah's palace वगैरह वगैरह. And he was stopped because he was in very ragged clothes and all that. So the minute the Darwan, they saw his ring, they thought, but this man is genuine, and they let him in. Now this was somewhere towards afternoon time. So he was brought into the palace, or he was told कि भाई बादशाह जहाँ पना बहुत बिजी है, अब फिलहाल वो प्रेयर कर रहे हैं, अब इस रूम में बैठिए. तो ये बेचारा गरीब आदमी, that woodcutter, he was sitting in that room. और वो एक छोटा सा पर्दा था, वहाँ पे he could see Akbar Badshah bowing down and performing his namaz. After finishing his namaz, the emperor raises his hands and खुदा से दुआ मांगते हैं वगैरह वगैरह. And then he comes out and he sees this woodcutter, और उनको याद आता है कि हाँ ये तो मिला था मेरे को. Was very happy. पहली चीज he treated him very well, खाना पीना सब कुछ. Then he asked, he said कि आपको क्या चाहिए? What do you want? उसने बोला सर मुझे कुछ नहीं चाहिए. So this man, Akbar, was quite surprised. He said कि you came all the way, कुछ तो होगा. So he said कि हाँ, actually I had come to ask you for help.
because me and my family are starving. But when I came here and I saw you pray and you raise your hands and तुमने खुदा से दुआ मांगी, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि why should I ask a favor from you? Instead of doing that, why can't I ask the Lord himself directly? उनके पास से ही क्यों नहीं मैं ये help मांगू? And that is why मुझे कुछ नहीं चाहिए, thank you very much. And ऐसे बोल के वो निकल गया. The bottom line of this story is that when you are in the hands of the highest of the high, you don't need any in-betweens to go to. That is what this thing is all about. श्याम, हाँ जी, मैं एक छोटी सी घटना बताऊं? हाँ जरा briefly, हाँ शॉर्ट में. हाँ जी. तो एक सेंटर के बारे में, सेंटर जो हमको अटेंड करना है कैसा, इसके बारे में मुझे एक बात बतानी है कि मैं हर टाइम सूरत सेंटर नहीं था, वो टाइम में नवसारी सेंटर अटेंड करता था हर गुरुवार. और ये उसमें क्या होता था कि आपको पता है कि 24 आवर्स मेरी सर्विस चलती रहती थी. तो कभी मॉर्निंग ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी. तो जो मीटिंग का टाइम रहता था नवसारी सेंटर का, तो 9 से 3 करीबन होता था. अभी मैं ये मीटिंग जो अटेंड कर रहा था, और बाद में ऐसा हुआ कि मैं वो ठहरता था डॉक्टर भरूचा के वहाँ पे, और उसकी सहायता से मैं ये कर पाता था. लेकिन मैं एक सुझाव, शायद हमारी मन की कमजोरी या उस्तादी होगी, तो मैंने ऐसा बताया कि डॉक्टर मैं ऐसा करूं तो एक मैं अच्छी वाली कैसेट ले लूं और ये मैं आपको भेज दूं, आप पूरा का पूरा प्रोग्राम उसमें रिकॉर्ड करके मुझे वापस करना, मैं इधर सबके साथ सुन लूंगा, तो मीटिंग का पर्पस हमारा सॉल्व हो जाएगा. डॉक्टर के ठीक है. तो मैं वो टाइम एक अच्छी कैसेट ली और ये मैंने उसमें मेरी सिग्नेचर भी की वो टाइम की, मेरे भी फोटो है. तो वो मैंने कैसे तो नवसारी भेज दी डॉक्टर के पास. बाद में जो गुरुवार की मीटिंग शुरू हुई, तो मैंने बोला कि डॉक्टर पूरे के पूरे पहले से एंड तक के को रिकॉर्डिंग होना चाहिए ऐसा. तो ठीक है. तो उसने वो बीच में टेप रिकॉर्डर रख लिया, उसमें कैसेट रख दिया और ये प्रोग्राम शुरू हुआ. और शुरू होने के बाद एंड तक जो प्रोग्राम ने रिकॉर्ड कर दिया और वो कैसेट मुझे सूरत भेज दी. मैंने बोला कि शाम को सबको घर पे कि देखो चलो आज हम नवसारी सेंटर की मीटिंग में सुनेंगे क्या हुआ. ऐसा ऐसा करके हम सब लोग बैठ गए और मीटिंग स्टार्ट हुई और ये कैसेट हमने प्ले शुरू किया. शुरुआत में ऐसा होता है कि नवसारी सेंटर में भजन का प्रोग्राम होता है और बाद में डॉक्टर भरूचा की स्पीच होती है, जो बताना चाहते हैं बातें होती है. तो ये जो कार्यक्रम होता है, तो कैसेट मैंने वो प्ले की और भजन शुरुआत का भजन शुरू हो गया उसमें, और भजन का जो कार्यक्रम पूर्ण हुआ. और अभी डॉक्टर भरूचा जो बोलने वाला, जो बातें बताने वाला, तो वो टॉपिक निकालने वाला, जो बातें वो बताने वाला, लेकिन वो कुछ भी नहीं है. और एक कैसे जब भी भजन खत्म, बाद में सू ऐसा हो गया कि ये कुछ हुई गड़बड़ हो गई. मैंने डॉक्टर को बताया कि अरे मेरे सामने तक किसी ने कुछ हाथ लगाया नहीं है, जैसा है वैसा ही तो हमने रख दिया था. ठीक है, दूसरी बार हमने भेज दिया कैसेट. तो ये जो कैसेट हमने फिर से भेज दिया, डॉक्टर ने ठीक से देखा होगी कि पूरा के पूरा कुछ नहीं ऐसा ठीक से, और बाद में उसने फिर से वापस भेज दिया और हमने बोला कि चलो ये टाइम तो हम ठीक से सुनेंगे. तो ये जो हम कर रहे थे, हमने वो कैसे प्ले किया, वो भजन का कार्यक्रम तो पूरा हो गया. बाद में डॉक्टर की स्पीच चालू, यू सी ये शब्द इतना सुना डॉक्टर भरूचा, बाद में सू ऐसा चालू हो गया, कुछ भी नहीं आया. तो बाबा बताना चाहते हैं कि ये जो सेंटर की मीटिंग है हमको पर्सनली अटेंड करनी चाहिए ये बाबा का. और बाबा बोलते हैं कि मेरे सेंटर में
मेरा वो उसमें वो टाइम में वहीं होता हूँ, मेरी मौजूद स्पेशली मैं एक प्रमुख स्थान पे रहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से भाग जो हमारा दिमाग कर है कि हम ऐसा करके तरीके से हम जो सेंटर की मीटिंग अवॉइड कर, तो ये मेरे एक ये बताना चाहता, सूचक करता था कि ये सेंटर में जाना चाहिए। और मैं ये बहुत जरूरी था वो टाइम, डॉक्टर बुजे के टाइम के साथ में जो मीटिंग, तो बहुत मुझे काम की मीटिंग लगती थी। तो इस तरह से हमारे ये कहना का मतलब है कि बाबा को ये अटेंड करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय बाबा। एनीबडी एल्स? और कोई किसी को? या सैम। हाँ जी। जिमी यार। हाँ जी बोलो। Talking about attending Baba centers. हाँ जी। The day Baba inaugurated the Pune center, my mother and I were present. अच्छा. That's point number one. Point number two, Merwan Mistry, that's Rhoda and Jim Mistry's son. Merwan and I were seated at Guru Prasad Mandli room in front of Baba, and Baba's looking at the both of us. Baba's asking us, do you attend Pune center? And we were not attending Pune center. We knew nothing about the Pune center. Baba said, go and attend. Do go and attend. So Merwan and I, we had, in those days, cycles. So we took out our cycles and we went to Pune center. We went through over there and we came back. Then one day Baba's asking Merwan and me, did you visit the center? Did you go there? So I said, Baba, yes, we did go there. Then I said, Baba, but everything is in Marathi. And in those days, we never studied Marathi during school days. So I said, Baba, everything was in Marathi. The bhajans were in Marathi. The talk was in Marathi. And we didn't understand a word of it. Baba said, okay, let it be. Similar thing happened with my mother, Khorshid, Rhoda Mistry, and Najam Jangid, our mother. Baba asked them and they said, no, Baba, we don't go. Baba said, do go. So these three ladies, they take a rickshaw and go to Pune center. On return, an accident happened and the auto rickshaw turned turtle and all the ladies, they were all sprawling on the road. And fortunately, nothing serious happened and they came back to Mobo's hotel. And after they came to Mobo's hotel, Rhoda Mistry realized then when they fell on the road, her purse was gone. She didn't realize then, but after coming to the hotel, she realized that her purse was gone. Now what happened was that they were also middle class family. The Mistrys, they were just middle class. Like your father, Jim Mistry had a small press near Forest Road. So Rhoda had collected some small money and she had this small money in a small hand purse which she wanted to gift it to Baba. There were many ladies like Harman Masi. They would collect some small money throughout the year. And when they went to Guru Prasad, they would give this small, you call it gift, you call it whatever you like, to Baba. So the whole night, Rhoda could not sleep because in that purse was this envelope or the money which she wanted to give to Baba. And she was mentally very agitated. So the next time she enters Guru Prasad Mandali room, before she could utter a word, Baba did gesture saying that he did something like that, whatever you wanted to give me is with me. I've received it. So this is it. Jai Baba. Jai Baba. There is a small incident which I would like to narrate. It's about Prophet Muhammad. Muhammad Paigambar
एक दिन बैठ के he was giving a discourse to his so-called followers, and suddenly one lady comes with a little child, a boy, and she complains to Muhammad saying कि ये लड़का बहुत शरारती है, शैतान है, and all that. And ये खजूर बहुत खाता है. He eats a lot of khajur. So Muhammad looked at the boy and he said, ठीक है, आप एक हफ्ते के बाद आना and I will show you the इलाज for this boy. तो बेचारी वो lady चले गई and she returns back after another week, and again Muhammad looks at her and हाल चाल पूछे वगैरह, and she said कि मैं इसको आपके लिए लाया हूँ, ये खजूर बहुत खाता है वगैरह. So Muhammad looks at the boy, उसके सामने देखा, उसके सर पे हाथ फिराया और बोला, बेटा ज़्यादा खजूर मत खाना, पेट खराब हो जाएगा. That's all. And he told the lady to go. So she was quite upset. She said कि इतना छोटा बोलने के लिए you sent me out last week and you said to come back again this week just to tell him कि बाबा ये खाने से पेट खराब होगा, ज़्यादा नहीं खाना. So then Muhammad looks at that lady और हंस के उन्होंने कहा कि भाई ये इसको ये बोलने के लिए why I asked for a week's time is मेरे खुद को खजूर खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा खजूर खाने की आदत है. तो unless I improve my habit, how can I preach or tell people not to do such things? So the bottom line is कि whenever these avatars, when they speak, there is that backing of the truth. वो जो उन लोग जो कहते हैं वो उसमें एक सत्य का प्रभाव होता है, which makes the whole thing very, very emphatic. People like you and I, when we talk, there is not much of an impact. But when somebody like Baba's words are spoken, the impact is very, very strong. Talking about Muhammad, again, when he was with his followers and giving a discourse on being not to be attached, not to be attached, detachment ke liye. Suddenly his wife comes up and she says कि the young son of ours has passed away, he's dead. तो Muhammad उनकी तरफ देख के बोला कि please bring his body here, मेरे lap में, I just want that boy's body in my lap. तो wife जाके उसको wrapped up body, she brings it and hands it over to Muhammad. Muhammad ने उनके कदमों में वो बच्चे के body को रखा, and then a few tears fell from his eyes. Now all these disciples who were sitting around, they saw this. Of course, after that, वो बच्चे के बॉडी को ले जाके दफनाया गया, सेरेमनी जो भी कुछ थी वो. And then Muhammad noticed that ever since that day, whenever his disciples would come, they would not pay much attention to whatever he was saying. एक दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसे चलते रहा, तो ही एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कि भाई what is the matter? Why aren't you fellows so disinterested? Sorry. So one Charlie spoke up and he said, sir, just when you were telling us about being
detached, and this, that, and the other, and your wife brought your son's body, so you started shedding tears and all that. So Muhammad laughed and he said, बस इतनी छोटी सी बात में आप लोग इतना बुरा ये सब समझ के बैठ गए. And then he said something very profound. He said कि ये बच्चे के मुकद्दर में, this child's destiny में ये था कि upon his death, the prophet's tears will touch his body. And that is why I had to do this. Again, nothing ever happens without the prophet's wish, and we people do not really understand what the Lord really is doing. So, there is a very good saying कि हजारों पंडित हजारों श्याने खुदा की बातें खुदा ही जाने. And that is what this is all about, my dear friends. Time is up. Unless somebody wants to come in and say a few things, Yeah. I'm very happy. Sir, Ji. Jai Baba. Jai I'd Baba. like to read, Yes. yeah, I'd like to read a few lines that Arnavas once told us. May I share it, please? Please All do. right. Yes, yes. So Arnavas told us, the trouble with you is that you do not leave everything entirely to me. If you would leave everything entirely to me, then the responsibility would be mine. So just now we're going through such, we won't say troubled times. We're really well looked after by Baba, but the world is going through troubled times. So let's leave everything entirely to him and put the responsibility on him. Jai Baba. Jai Meher Baba. Haji. Firstly, leave the responsibility. That's the tough part of it. You have to leave everything entirely to him. Okay, now Hoshan would like to say something. Haji. Can I say something? 1 minute, just hold on. Hoshan, you wanted to say something, sir? Yeah, I want to say something. Ji, please. You see, today India is facing two fronts. One is the coronavirus, and the frontier also, there is hostility between the Chinese and the Pakistani army and all these things. I tell you a story once Baba told the Manji. This is a story I heard from my sister-in-law. Baba said that there was Indo-Pak war, and Lal Bahadur Shastri was our prime minister. See how Baba's words come true. He was both the prime minister, Shastri, and the Pakistani president, Ayub Khan. They were invited by Russian president to Tashkent to attend a meeting there and discuss the peace. What happened was that Baba is telling the women Manli on the dining table that fellow is a Pathan. He does like this. Mustache. And he's a strong man. That is our poor Shastriji is wearing a dhotya, is saying dhotya Perez. And he really survived the cold then. Nobody thought of it. And the evening, All India Radio announced that Lal Bahadur Shastri died of heart attack in Tashkent. Succumb to the cold. So, succumb to the cold. Succumb to the cold. So every word of Baba comes true. There is no doubt about it. And we should leave everything to Baba only. Manohar Sakre ne bola? Manohar Sakre said. You know, when the Chinese army overran our army in Assam side, northeast, the army had overrun our distinct Dr. Bhave, and his brother was Captain Aspi Irani. He was on the front that side. And they said that they were completely overrun. They had no arms compared to the Chinese army. And they were fully equipped. And then Baba declared suddenly that the Chinese will return to their territory.
Manoj Sastre left everything and went to Delhi and announced to his superior officers that Chinese army will withdraw now. So that officer laughed at him and said, who is your leader who has told this thing? Which winning captain or army general would retreat like this? Baba didn't use the word retreat. Baba said they will return back to their territory. These were his very words. And next day, the announcement came that the Chinese army is about to return back to the territory. So these are the Baba's words during the crisis of those days, and every word of Baba has come true. So this is what I wanted to say, that we must rely on Baba only, and whatever his responsibility is his only, and whatever he says happens. Nothing goes wrong with it. Very true, very true. Everybody take care, please. Ji. Baba has always said कि when you become mine, जब आप मेरे हो जाते हो, when you become mine, I dare not, care not. मेरी मजाल नहीं है कि मैं तुम्हारी संभाल नहीं करूं, लेकिन तुम मेरे हो के रहो. So my friends, I would like to end today's session with just this one request. Okay, whatever we do in life, let us cling on to his Daman with both our hands, because this Daman can be quite slippery. It can slip off any minute. So let us be on our guard. Let us be very, very careful and just follow him and love him, dedicate ourselves to him, and बाकी का जो भी कुछ है वो बाबा आगे संभाल लेंगे. Thank you everybody, and अवतार मेहर बाबा की. Thank you so much. Jai Baba. Thank you. Jai Baba. Thank you everybody. I hope everybody liked it. नहीं तो पैसा वापस मिल जाएगा. No, it was wonderful as usual. The money.